Welcome, my dear learners, to Aji Study World. In this lecture, I am going to discuss about public economics previous questions of UGC NET that related to market failure and remedial measures, asymmetric information, public goods, and externality. This is your first question. Question 1, it is your assertions and reasons. Assertions that related to use of goods and services from which one can be excluded are pure private goods. And your region here, such goods and services are not provided free by the state. And here there are four options. Option A, there is both A and R correct, and R is the correct explanation for A. Option B, both A and R are correct, but R is not the correct explanation for A. Option C, that is related to A is correct, but R is incorrect. Option D, A is incorrect, but R is correct. To know about this question's answer, I think we should know about the difference between public goods and private goods. Then it will more easy in order to give answer of this question. Let's know about the difference between public goods and private goods. Actually, public goods are those goods which are provided by the government of a country in order to maximization of social welfare, whereas private goods are those goods which are generally provided by an individual or a group of individual, or you can say the farms, in order to make maximization of profit. That means here the motive of public good, that is maximization of welfare, but in case of private good, that is your maximization of profit. The next difference, principle of exclusion is not applicable in case of public goods, whereas principle of exclusion is applicable in case of private goods. That means here you can exclude one person from consumption of goods and services from another person. Non-rival, principle of non-rival is applicable in case of your public goods, but rival principle is associated with your private goods. Then price, public goods have no price, private goods have price. Take some example about public goods: national defense, street light, public park, clean air, vaccination. Take example about your private goods: car, clothes, mobiles, phones, food, notebook, watch, and so on. Okay, now come to this question. This question is talking about use of goods and services from which one cannot exclude are pure private goods. That is your private goods. Is it correct? Do you think? Yes. Then such goods and services are not provided by free by the state. Actually, these goods are not provided by the state. Why? Actually, these goods and services are provided by your private sector, or you can say that an individual or a group of individual farm these things. That means here both A and R are correct, and R is the correct explanation for A. This is your correct answer. Then go to your next question, that is question number 2. Here assertion, that is there is no incentive for a profit maximizing producer to supply the public goods. Second thing, reason, if he produces it, he is unable to exclude people from consuming it, and hence he cannot charge the price. Here four option A, B, C, D. Let's discuss. There is no incentive for a profit maximizes producer to supply the public goods. Sure, actually the main objective of public goods your welfare, not your profit maximization. That means this one is your correct. You should know. Then if a producer it, he is unable to exclude, that means he can't exclude people from consuming it. You should know. Yes. Then here you can say that both A and R correct,
and R is your correct explanation A. Yes, no? Okay, this is your correct answer. Then move to next question. Next question that is related to here assertion that is relatively few private goods are totally rival and excludable. Then region most consumption and production has at least some shared aspects. Okay, that means look here. Your assertion is correct. Relative few private goods are totally rival. Rival in nature, no doubt, and excludable. Yes or no? Okay. Then go. Most consumption and production has at least some shared aspect. This is also correct, no doubt. But your reason is not the correct explanation of assertion. That means both sentences are correct, no doubt. That means both A and R are correct. Clear? Then go to next question. That is question number 4. Public goods are characterized by. It means what are characters of public goods? Look here. Collective consumption. This is also one of most important characteristics of public goods. Divisibility. No. This is applicable in case of your private goods. Non-exclusion. This principle is applicable in case of public goods. Rival consumption. This is one of important characteristics of your private good. That means your collective consumption is correct and principle of non-exclusion also correct. That means 1 and 3 correct. That means here your answer is B. You should know. Then move to next question. That is question number 5. Look here. Among the following, what causes market failure? I think first we should know about the meaning of market failure. Okay, let's move. Actually, what is market failure? Market failure happens when the free market left on its own does not allocate resource efficiently or fairly. That means market फेल तब होता है जब सारी चीज क्या होता है नहीं जो रिसोर्स अच्छा से allocate नहीं होता है इसी वजह से. What are different causes of market failure? मतलब क्या क्या रीजन है जो मार्केट फेलियर का. पहला चीज है पब्लिक गुड्स, then externalities, then monopoly, then asymmetric information, incomplete market, factor immobilized, underproduction of merit goods, overproduction of demerit goods. These are causes of market failure. Look your question. Among the following, what causes market failure? Externality. You should know. Yes. Then asymmetric information also one cause, but perfect competition is not. Your market will clear. That's why our answer that is 1 and 2 are correct. That means your answer is C. Okay, then move to number 6 question. Technique used to encourage the production and consumption goods that generate positive externality are referred to as. I think we should know about your externalities. Okay, then what is externality? An externality occurs when the action of a producer or consumer affect others who are not directly involved in the transaction and these effects are not reflected in market price. एक्चुअली वो क्या बोलता है कि एक आदमी है जो कंजप्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट फॉल होता है. जस्ट थिंक अबाउट वहाँ पर एक आदमी एक्स वो कंजप्शन प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं फिर भी कंजप्शन प्रोडक्शन से वो अफेक्ट हो रहा है. Okay, that is known as your externality. Then look your different types of externality. Externality can be divided into 4 categories like your positive externality, negative externality, production externality and consumption externality. Look your positive externality. Benefits spill over to the third parties. मतलब एक आदमी यहाँ पर है उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव हो रहा है वो पॉजिटिव एक्सटर्नल के अंदर में आएगा. टेक फॉर एग्जांपल, जस्ट थिंक अबाउट वैक्सीनेशन ड्यूरिंग कोरोना टाइम. वैक्सीनेशन का एक आदमी वैक्सीनेशन लिया उसके बाद क्या है दूसरा आदमी को इफेक्ट नहीं होगा. इफेक्ट नहीं होगा मतलब वो दूसरा आदमी को स्प्रेड नहीं होगा. एक पॉजिटिव इफेक्ट है. देन नेगेटिव एक्सटर्नल द कॉस्ट स्पिल ओवर टू थर्ड पार्टीज. एग्जांपल पॉल्यूशन, स्मोकिंग, नॉइज.
नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब नकारात्मक प्रभाव होता है। जस्ट थिंक अबाउट, तुम्हारा पास कोई आदमी है, वो स्मोक कर रहा है, तुम्हारा ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मतलब कोई नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। देन नेक्स्ट थिंग प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, व्हेन प्रोडक्शन एक्टिविटी अफेक्ट अदर, मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो थर्ड पार्टी को भी अफेक्ट करता है। टेक फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री पॉल्यूशन जो नेगेटिव होता है, उसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो रिड्यूस होगा, उसके बाद तुम्हारा जो प्रोडक्ट का प्राइस वो चीप होगा, वो तुम भी अच्छे से खरीद सकता है क्योंकि लो प्राइस हो जाए। कंजप्शन एक्सटर्नलिटी, व्हेन कंजप्शन एक्टिविटी अफेक्ट अदर्स, एग्जांपल यू कैन टेक स्मोकिंग इन पब्लिक, जो पब्लिक में स्मोक करता है उसके बाद क्या होता है, उनके पास जो आदमी होता है उनको भी हाँ पर होता है कि नहीं। मेंटेनिंग ए ब्यूटीफुल गार्डन, जस्ट थिंक अबाउट तुम्हारा नाइबर एक ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेनिंग कर रहा है, वहाँ पर भी तुम एंजॉय कर सकते हो उसका जो ब्यूटी होता है कि नहीं, वो सारी चीज़ वहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब चलो देखते क्या होता है। टेक्निक यूज टू एनकरेज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन गुड्स दैट जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, मतलब जो पॉजिटिव एक्सटर्नल होता है उनको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ है। एक तो होता है सब्सिडी देता है गवर्नमेंट, उसके बाद कुछ वाउचर वगैरह ही देता है, यानी टैक्स इंसेंटिव एंड वाउचर। टैक्स इंसेंटिव मतलब वो सब्सिडीज होता है, फीस तो नहीं होता है, फाइन्स तो नहीं होता है, टैक्स एंड चार्जेस नहीं होता है, उसके बाद स्पेशल असेसमेंट भी नहीं। मतलब यहाँ पर आंसर तुम्हारा ए इज द करेक्ट। देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Adverse selection arises because of lack of information, wrong information, asymmetrical information, uncertainty of future. First, I think we should know about asymmetric information. Then we'll discuss one by one. First, what is symmetric? Symmetric means whatever may be information available to one party, that amount of information that known to the other party. Just think about, I have certain amount of information. Okay, that information I provided to you. Same amount of information, that means symmetric. Asymmetric means if one party hides some information to other party, that is known as asymmetric information. Clear? Look up about asymmetric information, a situation where one party in a transaction has more or better information than the other. Clear? Then what are economists, which economists generally associated with asymmetric information? First thing, George Akerlof, दैट रिलेटेड टू मार्केट फॉर लेमन्स। वो एक्चुअली कहता है ना, एक लेमन मार्केट होता है, वहाँ पर एसोसिएटेड होता है तुम्हारा जॉर्ज आकरलोफ। एक्चुअली वो क्या बोलता है ना, एक चेरी कार है, एक लेमन कार है। चेरी कार जो होता है वो खराब कार होता है, खराब कार नहीं अच्छा कार होता है, और लेमन कार, लेमन्स आर वेरी बैड कार। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, जो लेमन कार होता है वो ज़्यादा सेल होता है, लेकिन चेरी कार सेल नहीं होता है ड्यू टू एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट थिंग, जोसेफ स्टिग्लिट्ज वो वर्क करता है किसके ऊपर, स्क्रीन मैकेनिक के ऊपर। और उसके बाद माइकल स्पेंस होता है जो सिग्नलिंग थ्योरी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, आ जाओ अभी क्वेश्चन के ऊपर। एडवर्स सिलेक्शन अराइजेस बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। एसिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन मतलब एक पार्टी के पास इन्फॉर्मेशन होता है, दूसरा पार्टी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि एक बायर के पास इन्फॉर्मेशन होता है, वो सेल होता है, और सेलर के पास भी हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट, यहाँ पर बायर और सेलर कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को हाइड करता है। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट, मैं एक चीज़ तुमको सेल करता हूँ, एक कार, मैं बताऊंगा नहीं कि कार का क्वालिटी क्या है, मतलब वो मैं हाइड कर दिया, वो हो गया एसिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो गया, एसिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन। देन गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक दो बात भी यहाँ पर है, जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, एक तो एडवर्स सिलेक्शन होता है, दूसरा मोरल हैजर्ड होता है। एडवर्स सिलेक्शन कैसे होता है कि जस्ट थिंक अबाउट, जो तुम ट्रांजेक्शन कर लेके जाता है ना, वो समय तुम्हारे को क्या होता है ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन हाइड हो गया वो भी एक नेगेटिव फ्यूचर में पड़ सकता है। वो जो बिफोर के ट्रांजेक्शन होता है ना, वो टाइम में तुम एडवर्स सिलेक्शन होता है जो कमिट करता है एरर। मोरल हैजर्ड मतलब क्या होता है ना, जो तुम प्रोडक्ट खरीद करने के बाद जो इम्पैक्ट फॉल होता है उसको तुम क्या कर सकते हो ना, मोरल हैजर्ड बोल सकते हैं। Okay, then efficiency requires that production of a pure public goods be undertaken to the point where actually जो प्योर पब्लिक गुड्स होता है ना, वो कौन सा पॉइंट होता है उसको डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है ना, द सम ऑफ द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट ऑप्शन, द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ production. Next, the marginal social cost exceeds the sum of the marginal private benefit. The next option, that is known
ऑफ द एबव। यहाँ पर क्या आंसर तुम्हारा होना चाहिए? देखो यहाँ पे द सम ऑफ द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट is exactly equal to the marginal social cost of production. This is your correct answer. Okay, then move to next question. Which of the following is not a problem insurance market? मतलब इंश्योरेंस मार्केट में कौन सा प्रॉब्लम नहीं होता है? पहले देखो इंश्योरेंस मार्केट किसके साथ रिलेटेड है? वो तुम्हारा जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के साथ रहता है। वो मैंने बोला कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से दो कॉन्सेप्ट आ रहे, जो तुम्हारा एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हैजर्ड, मतलब वो तीसरा नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट आंसर डी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोशल कॉस्ट ऑफ लाइज अबव द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ फॉर द प्रोड्यूसर इन केस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ से कौन सा चीज होता है जहाँ पर तुम्हारा क्या होगा ना, सोशल कॉस्ट ऑफ अबव होता है जो प्राइवेट कॉस्ट ऑफ से। लुक योर द डायग्राम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। देखो वहाँ पर सोशल कॉस्ट होता है, प्राइवेट कॉस्ट होता है, ऊपर वाला है। ठीक है, वहाँ से क्या चीज होता है तुम बोल सकते हैं, इजीली से बोल सकता है कि नहीं? ठीक है, वो जो चीज होता है नहीं, वो किसके केस में होता है? वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी केस में होता है। ठीक है, वहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। क्लियर? देन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। वोटिंग फेल्स टू जनरेट द एफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ए पब्लिक गुड्स बिकॉज वो रीजन क्या है जो वोटिंग फेल क्यों होता है? यहाँ पर मेन रीजन होता है कि ना वो परफेक्ट चीज रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जो एक्यूरेट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, उसी वजह से होता है। ठीक है, वहाँ पर देखो लॉबिंग ग्रुप्स यूज ब्राइब्स, नो पब्लिक गुड्स आर नॉट deflected by consumption, no public goods cannot be withheld from consumption, no क्या हो जाएगा? voting does not accurately reflect the magnitude of benefit from public goods, वही हो जाता है तुम्हारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, then move next। to reach an economical efficient output level, the size of an excise tax imposed on a farm generating negative externality should be। मतलब वो बोलता है कि जो जो टैक्स यहाँ पर इम्पोज करा जाएगा नेगेटिव एक्सटर्नल में, वो किसके डिफरेंस के बीच होगा? पहले द फार्म्स मार्जिनल कॉस्ट वो तो नहीं होगा, दूसरा द सोशल मार्जिनल कॉस्ट वो नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन द सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड द फार्म्स मार्जिनल कॉस्ट, वही है तुम्हारा करेक्ट आंसर। वो जो दोनों का डिफरेंस होता है, वहाँ पे भी डायग्राम है वही चीज, मतलब जो एक्स्ट्रा हो गया ना, वो जो पार्ट, वही पार्ट वो क्या करा ना, उस हिसाब से वो उसको टैक्स इम्पोज कर देगा। ठीक है गवर्नमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ए पब्लिक गुड इज, मतलब वो पब्लिक गुड का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पूछ रहा है। नॉन एक्सक्लूसिव नेचर, वही तो बात है। ठीक है, नॉन एक्सक्लूड यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या था? नॉन राइवल इन कंजप्शन, कंजप्शन में कोई भी राइवल नहीं होता है, वो तो ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्सक्लूसिव नेचर, नो इट्स एसोसिएटेड विथ योर प्राइवेट गुड्स, ए गुड दैट द पब्लिक मस्ट पोजेस, नो। यहाँ पर आंसर तुम्हारा बन जाएगा आई सेकेंड आई करेक्ट, मतलब यहाँ पर आंसर इज योर ए, दैट इज आई एंड सेकेंड आई। ओके क्लियर? देन मूव टू 14 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ठीक होता है? एक कॉमन डिशेस इज राइवल एंड एक्सक्लूड, मतलब वो बोलता है कॉमन डिशेस क्या होता है? राइवल एंड एक्सक्लूड। उसका है कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन डिशेस, दैट इज राइवल एंड एक्सक्लूड। और राइवल मतलब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी राइवल आता है, जस्ट थिंक अबाउट फिशिंग एक्टिविटीज इन ए पॉन्ड, वहाँ पर क्या होता है ना, वो तो जस्ट थिंक अबाउट वो पब्लिक पॉन्ड है, वो सब तो जाता है फिशिंग के लिए, लेकिन क्या होता है ना, एक आदमी फिश पकड़ लिया, मतलब दूसरा आदमी के लिए फिश क्या हो गया? अमाउंट रिड्यूस हो गया, मतलब वहाँ पर राइवल होता है। उसके बाद नॉन एक्सक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है बात, ए पब्लिक गुड जो नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूड, although by default we already see that these are two important characteristics of your public goods. Okay, that means your both A and B are correct. Clear? That means answer A here, option A is correct. Then move to next question। market failure can occur because of, market failure होता है क्यों? एक्चुअली वहाँ पर मैं बहुत सारी रीजन बताया। वो था, एक था इम्परफेक्ट कंपटीशन भी तुम बोल सकता, जो मोनोपोली वगैरह, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वगैरह, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। और कहाँ पर हो रहा है? एक्सटर्नलिटी, आई तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो दोनों केस में होगा, मतलब यहाँ पर आंसर तुम्हारा क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The presumption that costly new knowledge would be under supplied by the private sector is based on the essential character of new knowledge। वो न्यू नॉलेज क्या होता है ना, कुछ तुम नया आइडिया और नया सोच लेकर आया, सोच साथ लेकर आया, क्या होगा ना, वो तुमको एक बार प्रोवाइड कर देना, उसके बाद क्या हो जाता है ना, वो पब्लिक हो जाता है।
मतलब वो नॉन ड्राइवर वाला नॉन एक्सक्लूसिव है, इसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है ना, उसको कुछ टाइम के लिए हाइड कर देता है कि नहीं, छुपा देता है। वो नॉन ड्राइव वाला होता है और नॉन एक्सक्लूसिव नेचर ही होता है। मतलब यहाँ पर तुम्हारा आंसर सी ही बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स। मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो पब्लिक गुड का एग्जाम्पल को है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग वो तो प्राइवेट आदमी के पास होता है, वो प्राइवेट गुड्स। नेशनल डिफेंस वो हो गया तुम्हारा पब्लिक गुड्स। ठीक है, और रेस्टोरेंट वेल्स स्विमिंग पूल्स वो तुम्हारा हो गया प्राइवेट गुड्स। मतलब योर आंसर इज बी। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट द कॉज फॉर मार्केट फेलियर। मतलब उसके अंदर में जो कौन तुम्हारा मार्केट फेलियर का कॉज नहीं है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वो तो कॉज है, पब्लिक गुड्स वो तो कॉज है, एक्सटर्नलिटी वो भी कॉज है। उसका मतलब वही डी ही तुम्हारा करेक्ट आंसर, लैक ऑफ डिमांड। Then move to next question. Question number 19. Market failure occurs in case of most of the environmental goods because उसका रीजन क्या है मार्केट फेलियर होने के लिए। ओके, जो एनवायरमेंट गुड्स होता है ये तो पहला चीज है पब्लिक गुड्स। देखो पब्लिक गुड्स का कैरेक्टर क्या था, उसी हिसाब से देख लो। एनवायरमेंटल गुड्स और राइवल प्रोडक्ट्स, नो वो तो राइवल मतलब क्या हो गया, प्राइवेट गुड्स हो गया। नो, एनवायरमेंटल गुड्स और एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट। ओके, वो तो एक पार्ट। और तुम्हारा किसका एक्सक्लूडेबल मतलब प्राइवेट गुड्स का। एनवायरमेंट गुड्स और नॉन ड्राइव वाला इंट्रोडक्शन, नॉन ड्राइव वाला। ओके, वो तो एक पार्ट है। लुक हियर, एनवायरमेंटल गुड्स आर नॉन ड्राइव वाला एंड नॉन एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज योर करेक्ट आंसर 19। करेक्ट आंसर इज योर डी। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर। का एग्जांपल नहीं होता है। मोनोपोली, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नलिटीज। मोनोपोली वो तो रीजन है, उसके बाद एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वो भी है, एक्सटर्नलिटी वो भी है, लेकिन तुम्हारा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स वो नहीं। ठीक है, हमारा आंसर तुम्हारा सी होता है। चलो 21 क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। फर्स्ट थिंग पब्लिक इम्यूनाइजेशन, increasing corporate tax, issuing a permit for pollution, monitoring the hazards caused by industry। तो जो पब्लिक इम्यूनाइजेशन होता है ना वही होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कोरोना टाइम में जो हमको मिला कि जो टीका, ओके, जो वैक्सीन मिला वो अच्छे से काम किया कि नहीं, काम किया। मतलब हम लिया, वो दूसरे के लिए भी बेनिफिट हुआ, मतलब वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट किया है। ओके, नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन इज एनकाउंटर। ठीक है, कहाँ से तुम्हारा तो एडवर्स सिलेक्शन को एनकाउंटर होता है। पहला चीज मार्केट ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे भी होता है और मार्केट फॉर क्रेडिट वहाँ पे होता है। मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट कि नहीं। मतलब वहाँ कहाँ कौन सा ऑप्शन के अंदर में है 22 का, वो डी के अंदर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का लुक हियर। वो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 वहाँ हमको क्या करना है, मैचिंग। वो मैचिंग को बहुत टाइम में पड़ता है, उसको भी देख लो। जो यूजीसी नेट का अच्छा मार्क देगा तुम्हारा जो मैचिंग होता है। इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केटिंग डीलिंग विथ एक्सटर्नल, जो इफेक्टिव जो प्राइवेट मार्केट का डील करता है ना वो किसके थ्योरी के साथ रिलेटेड है। रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू वो किसके साथ रिलेटेड है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। और एक होता है कंट्रोलिंग प्राइस थ्रू इफेक्टिव। ओके, जो प्राइस को कंट्रोल करता है। लाफर कर्व वो किस किसके बीच में रिलेशन तुम्हारा शो करता है। जो लाफर कर्व होता है, जो लाफर कर्व होता है वो क्या करता है ना, टैक्स और किसके बीच रिलेशनशिप करता है। एक तो तुम्हारा टैक्स, उसके बाद क्या ना रेवेन्यू, मतलब वो बी हो गया। मतलब बी का 1 वहाँ पे हो सकता है, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग जो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, वो गेम थ्योरी। सी का आई पे देख लो, सी का आई पे लुक हियर ओनली 1 प्लेस में होता है जो ए का। मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारा 23 का ए ही बन जाएगा। मतलब लुक हियर ए का 3 मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट डीलिंग विथ एक्सटर्नलिटी वो किसके साथ रिलेटेड, जो कोच बार्गेनिंग थ्योरी होता है उसके साथ। रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू किसके साथ तुम्हारा एसोसिएटेड होता है, वो लाफर कर्व होता है। और एक डोमिनेंट स्ट्रेटेजी जो गेम थ्योरी में होता है
जो न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न के साथ एसोसिएटेड गेम थ्योरी, कंट्रोलिंग प्राइस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर और डेड वेट लॉस के साथ एसोसिएटेड होता है। क्लियर? देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केट फेल्योर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मार्केट फेल्योर कॉज होता है, क्यों होता है मार्केट फेल्योर? पोवर्टी तो नहीं, एक एक्सटर्नल चीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है बोलो? पोवर्टी तो नहीं होता, ए को कट कर लो, वो तो नहीं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल से होता है। उसके बाद तुम क्या बोल सकते हैं? उसके बाद तुम बोल सकते हो कि मार्केट पावर, वो तो होता है, लेकिन प्राइवेट कोड में मार्केट फेल्योर नहीं होता है। उसका मतलब बी एंड सी, बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। लुक योर ऑप्शन नंबर बी में होता है बी एंड सी, दैट मीन्स योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन go to next question. Given below are two statements, one is labeled as, okay, here assertion that the other is labeled to reason. Look here, there is no incentive for a profit maximization products to supply public, वो शायद रिपीट हो गया अगेन इन 2021 में क्वेश्चन, वो भी पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इफ ही प्रोड्यूस इट ही इज अनएबल टू एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग इट एंड हेंस ही कैन नॉट चार्ज ए प्राइस। यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पर तुम्हारा दोनों स्टेटमेंट तो सही था, और क्या होगा ना, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, मतलब वहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ए सोर्स ऑफ मार्केट फेल्योर? मार्केट फेल्योर का सोर्स है, ऑलरेडी तुम्हारा डिस्कस किया था, वही चीज फिर आ गया द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड्स, the presence of externalities, the fact that some goods are rival in consumption, the existence of monopolies। आंसर कीजिए 26 का क्या होगा? 26 का बताओ, वो तुम्हारा क्या होगा ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड्स, वो तो था, ठीक है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी, ए भी तो सही बात है। उसके बाद क्या होगा? मोनोपोली, तो कोई चीज वो भी होगा, प्राइवेट गुड में नहीं होता है, मतलब वही तीनों। Okay, A, B, and D, not your C. Clear? Then move forward. 27. Which method can help in obtaining welfare improvement in externality? The exist. देखो थोड़ा चेंज कर दो। Okay. Piggyback taxation, regulation, assigning property right, and permitting bargaining. All of the above. मतलब क्या क्या चीज हम ले सकते हैं जो वेलफेयर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पिगुवेन टैक्सेस हम लेते हैं, एक जगह हम क्या करते हैं सब्सिडीज और टैक्स और रेगुलेशन भी, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी लेता है। उसके बाद क्या होता है ना, असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट करने का तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इनसे क्या क्या चीज करेक्ट है उसको फाइंड आउट करना है 28 क्वेश्चन का अंदर में। 28 में look here, the market is a system that works with price mechanism। मार्केट में क्या होता है ना, तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, प्राइस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म तो होता है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद मार्केट फेल्योर रिफर्स टू द डाइवर्जेंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम फ्रॉम पैरेटो ऑप्टिमलिटी। मार्केट फेल्योर हुआ तो मतलब कौन? पैरेटो ऑप्टिमम से डाइवर्जेंट होना, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम से, वो तो सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, market fails to efficiently supply public goods and same makes a case for गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जहाँ मार्केट फेलियर होता है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। वो बात तो सही है। मार्केट एफिशिएंटली वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल से मार्केट कहाँ से होता है? नहीं, वो नहीं होगा। पॉजिटिव एक्सटर्नल, नेगेटिव एक्सटर्नल, वहाँ से मार्केट क्या नहीं होगा? एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। मतलब ए बी सी करेक्ट, मतलब यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन मूव द फ्री राइड प्रॉब्लम एराइजेस, मतलब जो फ्री राइड प्रॉब्लम होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? याद रख लो, वो तुम्हारा पब्लिक गुड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। व्हेन गुड्स आर कंजेस्टेबल, व्हेन गुड्स आर ऑफ राइवल नेचर, व्हेन द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इज लार्ज एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनीवन ऑफ देम इज इम्पॉसिबल,
उसके बाद क्या है, व्हेन गुड्स आर अवेलेबल बट ऑन ए फास्ट कम फास्ट सर्विस बेसिस, नहीं वही चीज़ होगा जो तुम्हारा व्हेन द नंबर्स ऑफ बेनिफिशियरी इज लार्ज एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनी वन ऑफ देम इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे तुम क्या नहीं कर सकता, किसी को भी तुम क्या नहीं कर सकता, तुम एक्सक्लूजन नहीं कर सकता। ओके, वही केस होता है। नेक्स्ट थिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ द नॉन मार्केट एनवायरमेंटल रिसोर्स। जो नॉन मार्केट एनवायरमेंटल रिसोर्स के साथ क्या नहीं होता है, उसका आंसर हमको निकालना है। पहला थिंग से होता है क्या चीज़ है, मतलब जो नॉन मार्केट एनवायरमेंट में मतलब पब्लिक गुड्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक देख लो, हो जाएगा नॉन एक्सक्लूसिव नॉन लायबल इन कंजप्शन, वो तो बात सही है, ठीक है, वही तो आंसर हो गया। एक्सक्लूडेड बट नॉट राइवल इन कंजप्शन वो नहीं है, एक्सक्लूडेड नो नो, योर आंसर इज योर ए, ठीक है। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 31, ओके 31 डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डोंट बी वरी कि वो बड़ा क्वेश्चन देख रहा है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो डिस्कशन करते हैं, उसके बाद पता चलेगा वो आसानी है कि डिफिकल्ट है। ए कॉम्पिटेटिव मार्केट कैन सिक्योर एफिशिएंट रिसोर्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ प्राइवेट गुड्स, वो तो बात सही है। मार्केट फेलर कहाँ से होता है, सोशल गुड्स में। जो मार्केट एफिशिएंट वर्क करते हैं प्राइवेट गुड्स में, सोशल गुड्स में इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं होता है, ठीक है। एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल रेदर देन वर्टिकल addition of individual pseudo demand schedule. Look here, these things. एक्चुअली क्या होता है ना, जो तुम डिमांड कर्व होता है ना, एक तो तुम्हारा प्राइवेट गुड का होता है, दूसरा का कहाँ पर होता है, पब्लिक गुड्स में। पब्लिक गुड्स में क्या होता है ना, जो डिमांड कर्व होता है क्या होता है, वर्टिकल समीशन होता है, ठीक है, पब्लिक गुड्स में। प्राइवेट गुड में हॉरिजॉन्टल है, वही पॉइंट को लेते, मतलब वो तो बी नहीं हो सकता है। लोग यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, मतलब वो तीन ऑप्शन गलत है, मतलब यहाँ पर आंसर इज योर डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, एक तो आजर्सन, दूसरा रीजन। वो मार्च 2023 में पेपर 2 में गिरा था। लुक हियर, ए फॉर्म ऑफ मार्केट फेल्योर रिजल्ट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज आर सोल्ड एट ए सिंगल प्राइस। ऑब्वियसली मतलब वहाँ से क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट को क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट करके तुमको सेल कर दिया, वो तो प्रॉब्लम होता है। वो जो मार्केट फेल्योर के एक कॉस्ट तो बनता है। उसके बाद ए बायर एंड ए सेलर वो जस्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट टू प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब एक पार्टी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, दूसरे के पास कम हो सकता है। वो तो क्या होता है ना, बात तो सही है कि नहीं, और क्या होगा, आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क। उस क्वेश्चन को कीजिए और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।